مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئے ہم پہلے کلمے کی جانب بڑھتے ہیں جو خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلے تھے۔ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ لوکا 23:34 میں اس کلمے میں ہم سیکھیں گے کہ یہ خدا نے کس وقت کس کے لیے اور کیوں کہا، اس کلمے کا تب کیا مطلب تھا اور آج ہماری زندگیوں میں اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ یہ سایہ 53 باب اس کی 12 آیت کی تکمیل ہے، جس میں لکھا ہے کہ اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خدا یسوع مسیح کو جمعے کی صبح 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا اور یہ کلمہ یسوع نے 9 سے 12 بجے کے درمیان میں کہا۔ خدا یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ ایک دعا کی صورت میں تھے جو اس نے اپنے دشمنوں کے لیے کی گئی، اور یہی وہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ صلیب پر اس حالت میں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا خداوند یسوع مسیح کی دائمی اور غیر مشروط محبت کا ایک ثبوت ہے۔ اس نے اس دعا کا آغاز اے باپ کہہ کر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایک الزام لگایا گیا تھا کہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے۔ اسی الزام کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تھا، لیکن دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اے باپ کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی اس بات پر اپنے اس کلیم پر قائم ہے۔ وہ اپنی اس بات سے برا نہیں، اور باپ کہہ کر پکارنا اس کی قربت اور پاکیزگی اور باپ اور بیٹے کے رشتے کو بھی ظاہر کرتا ہے جو خدا اور یسوع کے درمیان تھا، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس جملے کا کیا مطلب تھا؟ یہ جملہ گناہ کی گہرائیوں کو ثابت کرتا ہے۔ ہمارا گناہ کا تصور بڑا اوپری سا ہے۔ گناہ کس طرح ہمیں دلدل میں مسلسل دھکیل رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ بالکل نارمل حالات ہیں، سب کچھ نارمل، ہر چیز نارمل طریقے سے چل رہی ہے، لیکن گناہ اپنی سنگینی کو لیے ہوئے ہماری زندگیوں میں ایک بڑا گہرا اثر کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ آپ کتنے گناہ گار ہیں اس بات کا تب پتہ چلتا ہے جب آپ خدا کی کلام کی روشنی میں آتے ہیں۔ جب آپ کلام کی روشنی میں آتے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے لوگ اس لیے نور کے پاس آنا نہیں چاہتے کہ ان کے کام ظاہر نہ ہو جائیں۔ جب تک آپ نور کے پاس نہیں آتے آپ کے کام ظاہر نہیں ہوتے، اور جو نور کے پاس نہیں اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ لوگ خدا کے بیٹے کو صلیب دے رہے تھے، خدا میں یسوع مسیح کو مصلوب کر رہے تھے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی جس طرح لوگوں کو دکھ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، انجیل کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور پاک روح کو جگہ جگہ رنجیدہ کرتے ہیں، اور ہمیں اس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب ہم کلام کی روشنی میں آتے ہیں اور کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی یہ دعا کس کے لیے تھی؟ کیا رومن فوج کے لیے جو یسوع مسیح کو اس وقت مصلوب کر رہے تھے؟ جی نہیں، کیونکہ وہ ان کا روزمرہ کا کام تھا۔ وہ یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جس کو مصلوب کر رہے تھے ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ عام اسرائیلی جو وہ جانتے تھے یسوع کو، لیکن وہ اس بات پر تھے کہ جب یسوع آئے گا تو ہمیں جو سزا قائم ہے کبھی فریسی وہ ہمیں بتائے گا، پاک روح کو رجیدہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے ہرگز معافی نہیں۔ خدا میں یسوع مسیح کے اس دعا سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرنا ہے، اور خدا میں یسوع مسیح گناہوں کی معافی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ دعا ہم سب کے لیے بھی اور آج بھی وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، اور آج ہمیں چاہیے کہ یسوع کے پاس آئیں اور سچے دل سے اس کو نجات دہندہ قبول کریں۔ آمین۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اس کی بائیں طرف مصلوب کیا، تب اس مضمون کا نوشتہ پورا ہوا کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا۔ پھر وہ جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانے دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ کیا تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا نہیں سکتا؟ مگر دوسرے نے اسے چھڑکا اور اسے کہا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟
اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ ہم گناہگار ہیں اور اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی بے چھا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آنا تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی فردوس میں ہوگا۔ اس وقت ہمیں اپنی آنکھیں کلوری پر لگائیں گے، جہاں وہ ہماری زندگیوں کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، جہاں کشت نہیں بلکہ فتح ہوئی، جہاں ناامیدی نہیں بلکہ امید نے جنم لیا، جہاں یسوع مسیح نے ایک مرتے ہوئے ڈاکو سے وعدہ کیا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دونوں ڈاکو پوری دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام لوگ دو حصے کیے جائیں گے، بھیڑیں ایماندار، بکریاں غیر ایماندار۔ انسان کے پاس دو ہی رستے ہیں اور دو ہی منزلیں، ایک جو پہلے ڈاکو نے اختیار کی اور اس نے اس سے کہا، یسوع کو رد کیا اور ابدی ہلاکت پائی، اور دوسرے نے مرتے دم یسوع کو قبول کر لیا اور ابدی زندگی کا وارث ہو گیا۔ یہ فیصلہ ان دونوں نے اپنی آزاد مرضی سے کیا۔ بے شک یسوع ان دونوں کے قریب تھے اور دونوں کو بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آزاد مرضی سے یہ فیصلہ کیا۔ آج ہمارے پاس بھی خداوند کی دی ہوئی آزاد مرضی ہے۔ آج ہم بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ اس نے ہمارے پاس آیا، اس نے گناہوں میں زندگی گزاری، ہم نے گناہوں میں زندگی گزاری اور اس نے وہ گناہوں میں زندگی میں آیا۔ آج ہمیں بھی یہ موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو رد کرتے ہوئے یسوع کی نجات کے پیچھے ہو لیے۔ خدا کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ ہم نے ماضی میں کتنے گناہ کیے۔ بائبل میں بہت سے لوگوں کا ذکر ہے جو اپنے برے ماضی پر غالب آئے اور خدا نے انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا۔ ابراہیم کا خدا خاندان جو بتوں کی پرستش کرتا تھا، لیکن بعد میں ابراہیم اسرائیل کا باپ ہوا۔ داؤد جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے گناہ کیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد وہ خدا کے دل کے موافق بن گیا۔ پلوس جو کلیسیا کا ستانے والا تھا، لیکن بعد میں یسوع کی خاطر دکھ سہنے والا بن گیا۔ خدا نے ان سب کو موقع دیا کہ اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کے، اپنی گناہوں بھری زندگی کو چھوڑ کے خداوند کے پیچھے چلیں۔ آج ہمیں بھی اپنی ناکامیوں کو بھول کر مستقبل کی کامیابیوں پر نگاہ کرنی ہے۔ ہمیں صرف ایک بات کی ضرورت ہے کہ یسوع کے پاس آئیں اور اسے اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ نجات کی یہ دوسری برکت یعنی ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ آمین۔ اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ابھی ہم جس کلمے پر غور کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے، وہ خدا کی زبان مبارک سے نکلا ہوا تیسرا کلمہ ہے۔ میرے ساتھ عہد جدید میں سے نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب 26 سے 27 آیت۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب 26 سے 27 آیت۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھا۔ دیکھ کر ماں سے کہا، آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد کو اپنے گھر لے گیا۔ کلام کا بڑا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث کا برکت ہو۔ آج اس کلمے میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور محبت کا اظہار کیا اور شریعت کو پورا کیا۔ ہم دیکھیں گے یسوع مسیح کی صلیبی موت کے وقت وہاں کون کون موجود تھا۔ یوحنا کی انجیل، اس کا 19 باب 25 آیت کے مطابق
वहाँ 4 औरतें और एक मर्द यानी यूहन्ना वहाँ मौजूद था। सबसे पहले नंबर पर यीशु मसीह की माँ मरियम, दूसरे नंबर पर सलोमी मुकद्दसा मरियम की बहन का नाम है। ये यीशु मसीह के शागिर्द याकूब और यूहन्ना की माँ और जिब्दी की बेबी थी, यानी याकूब और यूहन्ना यीशु मसीह के कज़न थे। यूहन्ना अपनी माँ के साथ वहाँ मौजूद था। 27 बाब 45 आयत में लिखा गया है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे मुल्क में अंधेरा छाया रहा। और हमने दूसरे कलमे के मुताले में देखा है कि 11 बजे के करीब यीशु मसीह की गुफ्तगू दोनों डाकुओं के साथ हुई। लिहाजा इस कलमे का वक़्त तरीकी छा जाने से थोड़ी देर पहले यानी 11:30 बजे का था। ये कलमा एक खानदानी फर्ज को पूरा करने के लिए बोला गया है। ये कलमा किसी सिफारिशी दुआएं और ना किसी सवाल का जवाब है, बल्कि एक गमज़दा माँ का इम्तिहान है जिसकी जिम्मेदारी एक शागिर्द को सौंप दी गई है ताकि उसकी देखभाल करे। यीशु मसीह स्लीप पर इंतहाई दुख की हालत में भी अपनी माँ के लिए फिक्रमंद थे और जो काम स्लीप पर करने वाले बाकी थे उनको बड़ी होशो-हवास के साथ उन्होंने मुकम्मल किया। इसमें यीशु मसीह का दुनियावी बाप यूसुफ कहीं नजर नहीं आ रहा। अंजील में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि वो कहाँ था। अगर वो वहाँ मौजूद होता तो अपनी माँ को, वो मरियम को जरूर संभालता, मगर स्लीपी कहानी में उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। ख्याल किया जाता है कि वो वफात पा चुका था, लेकिन किसी के पास उसका कोई सबूत नहीं था। यीशु मसीह के 3 भाई जिनका जिक्र मत्ती 13 बाब 55 आयत में किया गया है कहीं करीब नजर नहीं आ रहे। शायद उनमें से भी अभी तक कोई खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाया था, या यूँ भी कहा जा सकता है कि वो यहूदियों के डर की वजह से सामने आने की जरूरत ना रखते थे। मरियम उस वक्त बेयारो मददगार रह गई थी और मसीह उसकी मानद फिक्रमंद थे। लिखा है मसीह ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखता था पास खड़े देखा। सैकड़ों लोग 3 ऊंची स्लीप पर लटके हुए आदमियों को देख रहे थे, लेकिन मसीह नीचे की तरफ देख रहा था। ये उसको जन्म देने वाली माँ थी जो मसीह की स्लीप के पास खड़ी रही और मसीह के स्लीप से उतर जाने तक वो वहाँ खड़ी रही। कहा जाता है कि 3 औरतों के अलावा एक मर्द जब यूहन्ना भी वहाँ मौजूद था। मरियम और यूहन्ना को दोनों को ये बात मालूम ना थी कि आज उनका स्लीप के पास खड़ा होना सारी जिंदगी के लिए उन्हें इकट्ठा कर देगा। यूहन्ना बहुत दलेरी के साथ मसीह की स्लीप के पास खड़ा रहा और उसकी मोहब्बत का सबूत बना रहा, जिसकी वजह से यूहन्ना को आज एक जिम्मेदारी और शानदार खिदमत मिलने वाली थी। ये कलमा जिसका आगाज मसीह ने मोहब्बत से किया 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला माँ से मुखातिब, दूसरा यूहन्ना से। मसीह ने माँ से कहा, आए औरत देख तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना से कहा देख तेरी माँ ये है। यीशु मसीह के रहाइश और खाने पीने के बंदोबस्त से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि मसीह पहले खुद ही अपनी माँ की हिफाजत करता था और उसको सहारा देता था। यीशु मसीह उसे बुढ़ापे में बेसहारा नहीं छोड़ना चाहता था। उसकी मौत के बाद वो बेसहारा हो जाने वाली थी, लेकिन एक बेटा बनने को जा रहा था, लेकिन उसे दूसरा बेटा मिल गया। और यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो फौरी मरियम को अपने घर ले गया। यीशु जिसे सब शागिर्दों से ज़्यादा प्यार करता था, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। मरियम तमाम दुनिया की औरतों में से मुबारक औरत और काबिल एहतराम ख़वातून थी। कौन उसको अपने घर ले जाना नहीं चाहता था। एक तरफ यूहन्ना के लिए यीशु मसीह का खास प्यार और दूसरी तरफ मरियम जैसी मुकद्दस औरत का बेटा कहलाना यूहन्ना के लिए दोहरी खुशी का बायस था। यूहन्ना मरियम को अपने घर ले गया, मरियम को सहारा मिल गया और यीशु मसीह के दिल को इत्मीनान मिल गया। मेरे अजीजों, आज हम इस कलमा से सीखते हैं कि यीशु ने किस तरह अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, अपनी मोहब्बत का इजहार किया और शरीयत को पूरा किया। यीशु मसीह सलीब पर आखिरी सांसों की हालत में भी अपनी माँ के लिए फिक्रमंद थे। और इसके अलावा खुरूज 20 बाब में हम देखते हैं कि मूसा को 10 काम दिए गए, जिसमें लिखा है तो अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज हो जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है। यहाँ पर यीशु मसीह शरीयत पर अमल करते हुए भी हमें नजर आते हैं। यीशु मसीह ने किस तौर पर शरीयत को पूरा किया, और ये बात भी शरीयत ने बताई कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि इसको पूरा करने के लिए आया हूँ। इन बातों की रोशनी में हम यीशु मसीह की
यीशु मसीह के मुंह से निकला हुआ तीसरा कलमा देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपनी माँ के लिए फिक्रमंद थे, अपनी मोहब्बत का इजहार किया और शरीयत को पूरा किया। आज हमें भी इस मालिक कलमे के मुताबिक यही करना चाहिए कि जैसे यीशु मसीह ने अपनी माँ से मोहब्बत रखी, हमें भी चाहिए कि हम अपने माँ बाप से मोहब्बत रखें, मसीह की मोहब्बत रखें कि वो सलीब पर था फिर भी उसने अपनी माँ के लिए फिक्रमंद था। हमें भी चाहिए कि हम भी अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद हो। खुदावंद ऐसा करने का हमें बारी फजल अता फरमाए। आमीन। हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज का कलमा जो है चौथा कलमा जो खुदावंद ने सलीब पर चढ़ते हुए बयान किया कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आए इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए मरकस उसका 15 बाब उसकी 34वीं आयत में पढ़ेंगे। जिसने भी निकाले वो रहनुमाई कर सकता है पढ़ने की। बड़ी आवाज से चिल्लाया कि अलूही अलूही लब शकतनी, जिसका तर्जमा है ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी तरह हम मत्ती की इंजील में जब पढ़ते हैं तो उसमें भी सेम यही बात लिखी है। मत्ती की इंजील 27 बाब उसकी 46वीं आयत 46। किसी ने निकाल लिया तो पढ़ सकता हूँ। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लम शब्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा को छोड़ दिया था? नहीं। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह किसी को भी नहीं छोड़ता। और ये तो पेशन गोई हुई थी खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर कि उसने जब स्लीप पर मुए थे तो उन्होंने ये कहा कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी तरह हम जब ज़बूर 22 में भी पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और जब दाऊद नबी जब परेशानी में होता था तो खुदा उसे भी नहीं था छोड़ता होता। और वो जब इल्तिजा करता था, फरियाद करता था खुदा के हुजूर, तो उसे भी खुदावंद अकेला नहीं छोड़ता था। आए इसी तरह हम ज़बूर 22 में भी यही वर्ष पढ़ेंगे। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तू मेरी मदद और मेरे ना फरियाद से क्यों दूर रहता है। ऐ मेरे खुदा मैं दिन को पुकारता हूँ और तू जवाब नहीं देता, और रात को भी तू खामोश नहीं होता। लेकिन तू कदूस है और तू इस्राएल की हमसना और तख्त नशीन है। हम दो सना करता है। और मेरे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, इन्होंने तवक्कल किया और तूने इनको छुड़ाया। आमीन। आए हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए और हवाला पढ़ेंगे ज़बूर 16 बाब। ज़बूर 16 में भी यही लिखा हुआ है कि ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावन से कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरा भलाई नहीं है। इसी तरह जब दाऊद ने भी जब अपनी मुसीबत में होता था तो खुदा तब भी उसकी आवाज़ को सुनता था। ये नहीं कि खुदा हमारी आवाज़ को नहीं सुनता। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करें और अपने खुदावंद को याद करें और किसी भी गैर मबूदों के पीछे ना पहुँचे। आइए हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए एक और हवाला पढ़ेंगे ज़बूर 86 उसकी आयत नंबर 2। ज़बूर 86 और उसकी आयत नंबर 2 में लिखा है कि मेरी जान की हिफाजत कर, क्योंकि मैं दीनदार हूँ। ऐ मेरे खुदा अपने बंदा को जिसका तवक्कल तुझ पर है
बचा ले। या रब मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं दिन भर करता हूँ। या रब अपने बंदा की जान को शाद कर दे, क्योंकि मैं अपनी जान तेरी तरफ उठाता हूँ। आमीन। इसी तरह के बेकस है, बेकस हो गोया मुक्तोलों की माने जो कब्र में पड़े हैं, मुर्दों के दरमियान डाल दिया गया, क्योंकि जिनको तू फिर कभी याद नहीं करता, मैं वो तेरे हाथ से काट डालेंगे। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। इसी तरह हम एक और आखिरी आयत पढ़ेंगे, ज़बूर 15। उसी में भी यही बात लिखी है कि आयत पहली आयत ऐ खुदावन तेरे खेमे में कौन रहेगा और तेरे कोहे मकदस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ते से चलते और सदाकत का काम करते और दिल से सच बोलते। वो जो अपनी ज़बान से बहकान नहीं बांधते और अपने दोस्त से बदी नहीं करते और अपने हमसाये की बदनामी नहीं सुनते। आमीन। आमीन। सर जब दूसरी आयत पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि जो रास्तबाजी से चलता है और सदाकत का काम करता है और दिल से सच बोलता है। क्या खुदावन उसको छोड़ देता है जो दिल से सच बोलता है और रास्तबाजी करता है और सदाकत का काम करता है? इसी तरह हम अगर अपनी जिंदगियों में रास्तबाजी लाएंगे और सच्चाई से काम करेंगे तो खुदा हमारे भी इल्तिजा को सुनेगा और हमें भी कभी परेशान नहीं होने देगा। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। ताकि नविश्ता पूरा हो और कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जो 5वां कलमा है वो जिस्मानी दुख का कलमा है, इसको आजमाइश का कलमा भी कहते हैं। आज इस कलमे में हम कुछ पॉइंट है जिन पर गौर फिक्र करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने जो पहली दफ़ा जो यीशु मसीह ने जो मैं पी थी वो यीशु मसीह ने क्यों ना पी? दूसरी दफ़ा जो यीशु मसीह ने सिरका पिया वो कौन सा था? और ये स्पंज और ज़ूफा क्या है? आज हम इन सब के बारे में हम इस कलमे में सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, यीशु को 2 दफ़ा मैं पेश की गई, एक सुबह 9 बजे सलीब देने से पहले, दूसरी दोपहर 3 बजे मौत से पहले। आए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 27 बाब और उसकी 23 से 34 आयत। निकालिए सभी ने। इसमें हम देखेंगे कि जो पिक और मैं मिली हुई थी वो क्या थी और यीशु मसीह को ये क्यों दी गई। इसमें देखेंगे हम पिक मिली हुई मैं उसे पीने को दी मगर उसने चख कर ना पीना चाहा। हम इसमें देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये मैं क्यों ना पी। मेरे दोस्तों, ये जो मैं थी, जो पिक मैं थी ना, ये कड़वी और जहरीली जड़ी बूटी थी और जो मूठ थी ना, ये जिस्म को सुन कर देने वाली मैं थी और इसका असर एनेस्थीसिया जैसा था और ये इसलिए मुजरम को दी जाती थी ताकि उसमें जो तकलीफ का एहसास है वो कम हो जाए और जो रोमी फौज को इसको मतलब सजा देने में आसानी होती थी। लेकिन यीशु ने जैसे ही इसको चखा, इसको ना पिया, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों वो ये मैं ना पीना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका जिस्म ये तकलीफ बर्दाश्त कर सके। वो इसलिए तो वो सलीब पर गए कि वो इस दुख को सह सके। उन्होंने ये तकलीफ इसलिए बर्दाश्त की ताकि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़े। उसका अगर यही मकसद होता कि वो तकलीफ को बर्दाश्त कर सके तो वो मैं ये पी सकते थे, लेकिन उन्होंने ये पीने से इनकार कर दिया। अब मेरे अज़ीज़ों 3 घंटे गुजर चुके थे और यीशु मसीह को अभी तक प्यास ना लगी थी, लेकिन 6 घंटे बाद यीशु मसीह ने
सिपाही उनको कहना शुरू हो गए थे कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। वो यीशु मसीह को तंजिया तौर पर कह रहे थे मेरे अज़ीज़ों। लेकिन यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं प्यासा हूँ तो एक जो सिपाही था वो फौरन गया और स्पंज को लेकर सिरके में डिबोया और सर कंधे पर रखकर यीशु के मुंह को लगाया। मेरे अज़ीज़ों, ये जो सिरका था ये जड़ी बूटी और पानी के मिलाप से बनाया गया था। ये हल्की क्वालिटी की मैच थी और ये आम तौर पर ये सिपाहियों के पास होती थी। ये सिपाही इस मैच को पीते थे क्योंकि ये इसमें बताया गया कि ये जो मैच थी ना ये आमतौर पर जो फौजी थे ना वो इस्तेमाल करते होते थे क्योंकि वो सारा दिन इसको पीते थे ताकि उनके जिस्म में प्यास की कमी ना हो। वो इस चीज़ से वो ताकत हासिल करते थे। और इसमें मेरे जिसको बताया गया कि इसमें नमकियात की मौजूदगी जिस्म को पानी की कमी नहीं होने देती। और मेरे जिसको इसमें लिखा गया है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ तो एक शख्स ने यीशु मसीह को एक स्पंज से उस सिरके को पिलाया। और मेरे जिसको हम एक और आयत देखेंगे मरकज़ 15 बाब और उसकी 22 से 23 आयत तक हम देखेंगे। और वो उसे मुकामे गुलगता पर लाए जिसका तर्जुमा खोपड़ी की जगह है और मुड़ मिली हुई मैक उसे पीने को दी मगर उसने ना ली। मेरे अज़ीज़ों, इसमें जो झूफिया है वो एक ऐसी दरख्त की शाख थी जो बनी इस्राइल जब उन्होंने पहली फसा की तो उन्होंने जो अपने दरवाज़ों पर फूल लगाया था ना वो इस साफ पे रख के लगाया था। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह एक बड़ा था जो कामिल इंसान है और उसने हमारे गुनाहों की कुर्बानी के लिए इस कुर्बानी को सहा। और मेरे अज़ीज़ों, आगे हम देखेंगे और यीशु मसीह ने कहा और उन्होंने मुझे खाने को अंदराइन भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। इसमें हम दो वजूहात देखेंगे। जो यीशु मसीह ने जो सिरका पिया था उसकी दो वजूहात थी। पहली ये थी कि ये नविश्ता पूरा हो और उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और दूसरी वजह ये थी कि उसने फतहमंदी का ऐलान करना था कि उसने हर काम जो किया वो पूरा हो, इसलिए उसने कहा कि तमाम हुआ। और 6 घंटे गुजरने के बाद यीशु ने बहुत सी अज़ियत सही और उसका गला खुश्क हो चुका था और उसको पानी की शदीद कमी महसूस हो रही थी और उसको जोर से बोलने के लिए एक तर गला चाहिए था। सो उसने वो सिरका चखा ताकि फतहमंदी का जोरदार ऐलान कर सके और जो पहाड़ पर लोग मौजूद थे वो सुन सके। खुदा यीशु मसीह ने कलाम के हर हिस्से को पूरा किया और उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। मेरे अज़ीज़ों, अब इस कलमे में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को सलीब पर किस चीज़ की प्यास थी। मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह को सलीब पर हमारी रूहों की प्यास थी। वो मेरे अज़ीज़ों जिस्मानी हालत में थे लेकिन खुदा यीशु मसीह को जिस्मानी हालत में वो प्यास की हालत में थे। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह को रूहों की प्यास थी, रूह की थी, लेकिन यीशु मसीह तब जिस्मानी हालत में थे। उनके जिस्म से बहुत सा खून बह चुका था लेकिन उस वक्त खुदा यीशु मसीह को पानी की प्यास थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। आमीन। आज मेरे अजीजों हम यहाँ पर सब मौजूद हैं ताकि हम 7 सलीबी कलमात जो है उनकी इबादत खुदावंद के हजूर गुजराने। तो ये जो 7 सलीबी कलमात हैं, कलमे हैं, तो जो जब मेरा और आपका यीशु सलीब पे चढ़ा तो तब उसने वो दुख की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी और परेशानी की हालत में जो उसके मुंह से लफ्ज़ निकले वो उसको हम कलमा कहते हैं। वो कलमा मुबारक हो गया। और ये बात नहीं कि जो उसके मुंह से उस वक़्त लफ्ज़ निकले तो वो लफ्ज़ वही निकले जो उसके मुंह से निकलता गया वो कहता गया, ये बात नहीं है। बल्कि जो भी लफ्ज़ उसने बोला वो कलामे मुक़द्दस में से बोला, कलामे मुक़द्दस में से लिखा हुआ बोला। जो कलाम में लिखा हुआ था उसके बारे में हर एक पेश नगोई उसने वो पूरी की। जो शुरू से
इब्तदा से जो उसके बारे में लिखा जाता था वो एक एक बात उसने हमको बताई और सब कुछ क्या किया, तमाम किया। तो मेरा जो कलमा है वो फतहमंदी का कलमा है, मेरा कलमा छठा कलमा है। और हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 30 आयत में से देखते हैं। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। जब यीशु मसीह ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी, क्योंकि जो नबूवतें उसके बारे में हो चुकी थी, पैदाइश से लेके सलीब पर उसकी जान देने तक वो एक एक पूरी हो चुकी थी। तो उसने कहा कि तमाम हुआ। उसके बारे में जो जो भी बात कही गई तो उसने उसके बारे में बताया कि वो तमाम हुआ। तो हर एक बात, जैसे मैंने बोला है कि हर एक बात जो उसके बारे में लिखी हुई थी, जैसा मूसा के दौर से, जैसे दूसरे नबियों के दौर से, हर एक बात उसने बताई और उसने कहा कि तमाम हुआ। मेरे साथ निकाले लूका 24 बाब। लूका 24 बाब उसकी 25 और 26 आयत। उसने उनसे कहा, ऐ नदानो और ऐ नबियों की सब बातों के मानने वालों में सुस्त आत्मा दो, क्या मसीह को दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर है ना था? फिर मूसा से लेके सब नबियों से शुरू करके सब नविश्ते जितने बातें उसके हक में लिखी हुई थी उनको समझा दी। क्या किया? मूसा से लेके, तो वो जो यहूदी थे, वो जो हम कहते हैं फकीह फरीसी, तो वो फकीह फरीसी कौन थे? फकीह फरीसी कौन थे? शरा के आलम थे, जो बड़े पास्टर थे, बड़े ओहदों पे थे, जो कलाम को बड़े अच्छे तरीके से जानते और बयान करते आए थे, वो थे। और उनको यीशु मसीह की पैदाइश से लेके हत्ता कि उनको पता था, लेकिन उनके ज़हन जो थे वो बंद थे। ये कलाम मुकद्दस की आयतें जो है वो उन्होंने इस तरह पढ़ी हुई थी, हमने तो उस तरह हिफज नहीं किया, उन्होंने पुराने अहदनामे को हिफज किया हुआ था। जो फकीह फरीसी थे उनको जो आयत अच्छी लगती थी, उन्होंने यहाँ पे एक कैप पहनी होती थी और यहाँ पे भी उन्होंने कुछ बांधा होता था। जो हवाला जो आयत उन्हें अच्छी लगती थी वो उन्हें कोट करके जैसे तवीज़ नहीं बना लेते, ऐसे वो तवीज़ बना के अपने पास महफूज कर लेते थे, ताकि जब वक्त आए तो वो इस बात को बयान कर सके, कोई बात उनके ज़हन से न निकल जाए। तो किस तरह अपनी हिकमत के वो चाहते थे कि हम मसीह को पहचान जाए, तो इंसानी हिकमत के तौर पे वो मसीह को पहचान ना सके। अब हम इसी 24वीं निकालेंगे, लूका 24 बाब और उसकी 44 आयत में से देखेंगे। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही जब तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि जितनी बातें मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों में मेरी बाबत लिखी है वो पूरी हो। यहाँ पर भी वो यही बताता है कि ये बात सच है जो मैंने आपको बताई, कि ये सब वो बातें हैं जो मूसा की किताब और नबियों के सहीफों और ज़बूरों में मेरी बाबत लिखी है। आए हम ज़बूर 22 निकालते हैं। जब तक हमने पढ़ा नहीं था, जब तक हमने सीखा नहीं था, तो हम समझते थे शायद ज़बूर नवीस जो बोलता है वो अपने बारे में बोलता है। हमें समझ नहीं आती थी, बहुत सारे ज़बूर हम पढ़ते थे, हमें समझ नहीं आती थी कि ये लफ्ज़ किस तरह लफ्ज़ आगे पीछे हो जाता है। तो पिछले ही ये
मैं क्लास ले रही थी तो हमें उन्होंने बताया कि जो बात हम पढ़ने में देखते हैं कि इसमें दिक्कत हो रही है, तो हम कहते हैं शायद लिखने वाले की कोई गलती हो गई हो कि उसने आगे पीछे लिख दिया। हम अपने ज़हन से उसे ठीक करना चाहते हैं, लेकिन किताब मुक़द्दस में एक भी लफ्ज़ या एक भी नुक्ता ऐसा नहीं कि जो हम अपनी समझ से ठीक करें, बल्कि हमारे अंदर कमी है कि हमने अपने आप को उस कलाम के मुताबिक ठीक करना है। क्या करना है? उस कलाम के मुताबिक हमने अपने आप को ठीक करना है। आए ज़बूर 22 उसकी 17 और 18 आयत पढ़ेंगे। बल्कि हम 16 से पढ़ेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया और बंसरदारों के गिरोह मुझ पर गिरे हुए हैं, और मेरे हाथ और मेरे पाँव छेदते हैं, और अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ। मुझे ताकते और घूरते हैं, और मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरी पोशाक पर कूड़ा डालते हैं। हत्ता कि यीशु मसीह के मुताबिक ये ज़बूर में लिखा हुआ था, तो हम समझ नहीं सके। हत्ता कि दाऊद के कपड़े तो नहीं आपस में किसी ने बांटे, कूड़ा नहीं डाला, उसके हाथ पांव तो नहीं छेदे गए। ये तो मेरे और आपके मसीह के बारे में नबूवत हुई थी जो उसने बताई। तो हम मेरे अजीजों आज भी अपनी समझ के मुताबिक हम चले ना, कि अपनी समझ के मुताबिक हम दूसरों को बताएं, या अपनी समझ के मुताबिक कि मैं बहुत कुछ हूँ, तो कुछ नहीं हो सकता जब तक पाक रूह हमको गाइड करने वाला ना हो। और पाक रूह के बारे में लिखा हुआ है कि वो गहरी बातें, भेद की बातें जो बिना आलम से पोशीदा है, भेद की बातें, अंदर की तह तक की बातें आपको दरियाफ्त करके बताएगा। तो हम ज़बूर देखते हैं, ज़बूर 69। ज़बूर 69 और उसकी 21 आयत। उन्होंने मुझे खाने को कॉम्प्लन दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पहनाया। ये बहन अभी कलमा बोल के गई है ना, तो ये सारा उसके बारे में लिखा हुआ था। तो वहाँ पे भी बोला ना कि जब सब कुछ पूरा हो गया, तमाम हो गया, तो ये भी वही बात है कि जब सब नबूवतें जो थी वो तमाम हो गई, पूरी हो गई, तो तब उसने कहा कि तमाम हुआ। और यशाया 53 में भी हम देखते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे ही है। और यशाया में देखते हैं कि 53 बाब में तो लिखा हुआ है कि हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि हमारे ही गुनाहों के बाइस उस पर सियासत हुई, हमारे ही खताओं के इब्ज़ वो कुचला गया, हमारी खातर उसने कांटों का ताज पहना, अपने मुंह पे थकवाया और अपने हाथों और पाँव में कील थकवाए ताकि हम बच जाएं। और हमने समझा शायद ये इसने कोई ऐसा काम किया होगा। कोई बताते हैं कि किसी ने पूछा किसी अम्मा जी से कि अम्मा जी आप बताएं कि यीशु मसीह को सलीब पर क्यों चढ़ाया गया। तो वो अम्मा जी बड़ी सादी थी, उसने कहा बेटा, किसी पास्टर ने पूछा तो उसने कहा बेटा जी ऐसे तो कोई किसी को सलीब पे नहीं ना चढ़ा देता, कोई काम किया ही होगा ना। जब तक हमें समझ नहीं होती तो हम ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बातें कर जाते हैं। और एक आखिरी हवाला है, टाइम भी काफी हो गया। अखरूज 12 बाब उसकी 46 आयत में से। बल्कि हम 45 में से देखेंगे। और उसे एक ही घर में खाना, यानी उसका जरा भी गोश्त तो घर से बाहर न ले जाना, और वो
तुम उसकी कोई हड्डी ना तोड़ना। यीशु मसीह की हड्डी कोई तोड़ी गई थी स्लीप पर? नहीं तोड़ी गई थी। तो ये पर यहाँ पर भी उसी बड़े के बारे में लिखा हुआ है ना। हत्ता के उस बड़े ने क्या किया? बनी इसराइलियों को मिस्र से रिहाई बख्शी, और इस बड़े ने हमें गुनाहों से आजादी और रिहाई बख्शी। तो जो इसी के बारे में ये निविष्टा है, इसी के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना गई। लेकिन वो फिर भी समझे नहीं। फकी फरीसी और रोमन सिपाहियों के साथ मिलके उन्होंने ये सब कुछ किया, और उन्होंने हत्ता के फकी फरीसी ये सब कुछ समझते भी थे और सिपाहियों को कहते भी थे। ये जानते थे कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और उसकी कब्र पे फिर भी पहरा बैठवाया, इसलिए कि ताकि लिखा हुआ ना कि वो अपने घर गया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। वो तरीकी में थे, वो अंधेरे में और तरीकी में थे, उनके काम तरीकी में थे, और वो नहीं चाहते थे कि रोशनी हो जाए, तो हमारे भी जो अंदर के काम है वो जाहिर हो जाए। आज भी मेरे अजीजों बहुत सारे ऐसे फकी फरीसी हैं जो आपको हकीकी मसीह के पास आने नहीं देते, जो आपको पीछे की तरफ खींचते हैं। तो मेरे अजीजों जरूरत है कि हम उसको जाने, बड़ी हिकमत, बड़ी समझ और बड़ी तनाई के साथ हम उस जिंदा खुदा को जाने। मेरे अजीजों, उसका लहू, उसका खून बहुत कीमती था, बहुत कीमती था। ताकि हमारे बच्चे हैं, उसकी उंगली में से जरा भी खून निकल जाए, जरा भी उसे चोट लगे तो हमें तकलीफ होती है। तो वो भी एक माँ का बेटा था। उसके बारे में लिखा हुआ है, बाप का खिलौता और माँ का पिलौठा। तो उसने ये सब कुछ हमारे लिए बर्दाश्त किया, हमारे लिए सहा, ताकि हम बच जाएं। और आज भी हम अगर उसे ना समझे, उसकी उस निजात को, क्योंकि उसने हमारी खलासी वो जो है वो सोने चांदी से नहीं हुई, बल्कि उसने अपना पेश कीमत खून अदा करके हमें मूल खरीद लिया है। हम उसके खून खरीदे, उसके बेटियां और उसके बेटे हैं। और जरूर है कि हम अपनी जिंदगियों में से उसके जलाल को जाहिर करें, ताकि उसने हमें इसीलिए दुनिया में भेजा कि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और अगर आज भी हम अपने कामों में, अपनी दुनियावी फिक्रों में, अपनी परेशानियों में, अपने घर की झंझटों में आज भी हम फंसे रहे, तो फिर मेरे अजीजों, उसका सलीब पर लहू बहाना, उसका कांटों का ताज पहना, उसका मार खाना और उसके मुर्दों में से जी उठना बेफायदा है। अगर हम उसे समझ जाते हैं और बच जाते हैं और जिंदगी पाते हैं और निजात पाते हैं, तो उसका जो लहू है वो हमारे लिए वाकया ही, उसकी जान देना जो है वो हमारे लिए फख्र की बात होगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और खुदावन से दुआ करें कि खुदावन हमें इस कलाम पर कायम रहने का फजल अता करे। मेहरबान रब, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं पाक खुदावंद खुदा कि तू ही हमद और तारीफ और सताइश के लायक है पाक खुदावंद खुदा। आज का तेरा जिंदा कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, सुनाया जाना पाक खुदावंद खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक हो पाक खुदावंद खुदा। हम इस कलाम को अपने दिल में रखें ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करे पाक खुदावंद खुदा, और तेरी पाक मर्जी बुझा लाने वाले तेरे बेटियां, तेरे बेटे ठहरे पाक खुदावंद खुदा। तू हम सबकी मदद रहनुमाई कर पाक खुदावंद खुदा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे। यीशु के कदूस, जलाली, बाबरकत और फतेहमंद नाम में आपकी सबकी सलामती हो। अब वक्त आ पहुंचा कि हम यीशु मसीह के ज़बाने मुबारक से निकलने वाले सातवें कलमे पर गौर करें। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 23वां बाब 46वीं आयत। लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 23वां बाब 46वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर
दम दे दिया। कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। इस कलमे का वक्त तकरीबन 3 बजे का था। 3 घंटों से जो अंधेरा तमाम मुल्क में छाया हुआ था वो अब खत्म होने वाला था। हम देखते हैं कि चौथे कलमे में जो ताल्लुक टूट गया था, जब यीशु मसीह ने कहा आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 7वें कलमे में हम उस ताल्लुक को दोबारा से बहाल होता हुआ देखते हैं। 3-4 घंटों के बाद सूरज गुरूब होने वाला था और इसमें यहूदियों का एक खास सबक शुरू होने वाला था और जिन्होंने यीशु मसीह को मसरूफ किया था उनकी यही कोशिश थी कि यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ दें ताकि यीशु मसीह की वफात हो और हम अपनी ईद मना सकें। लेकिन पाक नविश्ता पूरा होने वाला था जिसमें लिखा गया है कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी गई। जब हम इस कलमे का बयान पढ़ते हैं तो ये कलमा, जैसे कि हमने पिछले कलमे में भी सीखा कि पेशन गोइयां पूरी हुई, तो ये कलमा जो था वो ज़बूर 31 बाब उसकी 5वीं आयत से लिया गया था, जहाँ पर लिखा है मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पर खुदा जब हम पहले कलमे पर गौर करते हैं तो वहाँ लिखा है कि आए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो जब हम 7वें कलमे पर गौर करते हैं तो 7वें कलमे में भी यीशु मसीह बाप को पुकारते हैं और वो कहते हैं कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब हम यहूदियों पर गौर करते हैं, यहूदियों के बारे में पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, यहूदी हर रात सोने से पहले कहते थे कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। किसी को नहीं पता कि हम कब वफात पा जाएंगे, किसी को अपने मरने का दिन पता, किसी को भी नहीं पता। इसी नोयत से यहूदी जो थे वो मरने से पहले कहते थे कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और इसी की वजह से यीशु मसीह ने भी कहा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बड़ा दुख सहा, जो जुदाई बागे अदन में पैदा हो चुकी थी, जब वो रिश्ता यहाँ पर बहार हुआ, वो है कलवरी पर बहार हुआ, मक़दस का पर्दा बीच में से फट गया और जुदाई की दीवार जो इंसान और खुदा के बीच में थी जब वो उठाई गई, तो यीशु ने कहा कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो यहाँ पर मुकाशफा की हमें ये आयत जो थी वो कोट होती हुई नजर आती है, जो स्मरणा की कलीसिया से कहा कि जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यहाँ पर मसीह ने खुद अपनी रूह को बाप के हवाले किया। हमें नजर आता है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें अपने मरने का दिन किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह को पता है, बेटे को पता है, क्योंकि उसको रूह को लेने का उसके पास इख्तियार है। आम इंसान अपनी रूह जो है वो खुदा को नहीं देते, बल्कि उनसे खुदा जो है वो रूह ले लेता है और बाप अपनी रूह को खुद खुदा के सुपुर्द कर रहा है और क्या रह गया है, बाप ने अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि उसके बारे में लिखा है कि मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर ले लूं, ताकि तीसरे दिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने अपनी रूह फिर ले ली। इसका बयान हमें 8वें बाब में मिलता है और यहाँ लिखा है कि कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप देता हूँ। यीशु मसीह खुद अपनी रूह को पेश कर रहे और कहती है कि मैं अपनी रूह जो है वो अपने बाप के हाथों में सौंप रहा हूँ। अब ये रूह सौंपने का और इस तरह से जैसे यीशु मसीह ने पहले कहा कि मैं प्यासा हूँ, यीशु मसीह ने जो काम और जो जिम्मेदारी उसके जिम्मे थी उसको मुकम्मल किया, तो उसने कहा तमाम हुआ। जब वो रूह सौंपने को जा रहा था तो यहाँ पर लिखा है कि किसी ने भी उसे ये नहीं कहा कि वो रूह सौंपे, बल्कि वो अपनी मर्जी से इस चीज की पेशकश कर रहा है। मेरे चीजों, हम इंसान होते हुए हम अपने बदनों की बड़ी फिक्र करते हैं, लेकिन हम किस बात की फिक्र नहीं करते? रूह की फिक्र नहीं करते। हमारे हाथ पे एक चोट लग जाए तो हमें टेंशन होती है, हमारे मुंह पे कुछ हो जाए हमें टेंशन होती है कि हम इसको क्लियर करें, क्योंकि हमें अपने बदन की फिक्र है। लेकिन जो रूह और बदन का बनाने वाला है उसे किसकी फिक्र है? अपनी रूह की फिक्र। और वो कहता है कि आए बाप
बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और जब हमारे चोट लगती है तो हम सिर्फ जिस्म को संवार के अपने उस हिस्से को क्लियर करते हैं, तो क्या जब हमारी रूह में गुनाह पाया जाता है तो हम उसे कैसे क्लियर करते हैं? क्या जब हम कोई गलती, कोई गुनाह, कोई खुदा करते हैं तो हम खुदा के नजदीक आते हैं, हम खुदा से माफी मांगते हैं कि खुदावन फला टाइम में मैंने गुनाह किया, तू मुझे माफ कर, या उसी टाइम अगर आपसे जाने अनजाने में गुनाह होता है तो अपनी रूह की मुहाफजत के लिए दुआ करें कि खुदावन मेरी रूह जो है वो महफूज रह सके। बदन खाली है, बदन मिट्टी के नीचे चला जाएगा, लेकिन रूह ऊपर आसमान पर खुदा के पास जाएगी। और खुदा की रूह सौंपे जाने, यीशु मसीह की रूह सौंपे जाने के ताल्लुक से हम सीखते हैं कि गरीब लाजर जब मर गया तो उसके बारे में लिखा है कि उसकी रूह जो थी वो उसको और गरीब आदमी को और लाजर को जो था वो बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया, लेकिन यीशु मसीह तो खुद अपने आप को खुदा के हवाले कर दे। यहाँ पर सलीब पर भी यीशु ने इसीलिए बुलंद आवाज से बोला कि आए बाप, क्योंकि खुदा का जहाना इस्तेमाल किया जाने वाला था आसमान पर, क्योंकि वो जो अर्श को छोड़कर फर्श पे आ गया था उसने दोबारा वापस जाना था। इसीलिए मसीह यीशु ने आसमान की तमाम कुफ्तों को और जमीन के तमाम लोगों को बड़े ही पुरजोर अंदाज में कहा कि तमाम दुआ उसके साथ ही वो कहता है कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो आसमान की कुफ्तों को भी बताना चाहता है कि मैं वापस आ रहा हूँ, और वो जमीन के लोगों को भी बताना चाहता है कि अपने बदन से ज्यादा अपनी रूह की फिक्र करें। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि हमें उससे नहीं डरना जो बदन को कत्ल करते हैं, बल्कि हमें किससे डरना है? जो बदन और रूह दोनों को कत्ल करता है। लिखा है कि उसी से डरो जो रूह और बदन दोनों को जहन्नम में डाल सकता है। हम बदनी तौर पर जब गुनाह में गिरफ्तार होते, हम गुनाह में गिरते हैं, तो सिर्फ बदन को ही महफूज न रखें बल्कि अपनी रूह की भी फिक्र करें। मेरे अजीजों, मसीह इंसानी तौर पर आम इंसानों की मालिक था, लेकिन उसमें जो रूह थी वो कौन सी रूह थी? पाक रूह थी, इसीलिए उसे अपनी रूह की फिक्र थी। वो इंसानों की शक्ल उसकी इंसानों जैसी थी, वो इंसानों की तरह खाता पीता था, उनके मुताबिक चलता था, और यीशु मसीह के वसीले ही ये सारी खिदमत हमें मिली, क्योंकि उसने अपनी रूह को बाप के हवाले सौंप दिया, और जब उसने सौंप दिया वो उसको रूह दोबारा से वापस मिली, और ये खिदमत हम सब तक पहुंची, जिसके वसीले से हम बहुत सी रूहों को जीतने का बायस बन सके। बाइबल में खुदा को हमेशा जो है वो इस तरह से पेश किया गया है, मुज़क्कर के तौर पर और इंसान को मोनस लिखा गया है। इसी तरह ईमानदार भी अपनी रूह और पाक रूह दोनों होती है। अगर ईमानदार लगातार गुनाह करता है तो रूह उसमें से निकल जाती है। अब जब यीशु मसीह खुदा के पास पहुंच गया तो उसको 3 किस्म के इनामात मिलने वाले थे। उसे मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसके सर पे पहनाया गया। वो अपने बाप के साथ उस तख्त पर जाकर बैठ गया, और तीसरा इख्तियार जो उसे मिलने वाला था, उसने कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और उनके के नाम से बपतिस्मा दो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें बड़े इख्तियार से कहना है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये इख्तियार हमें किसने दिया है? यीशु मसीह के वसीले हमें पहुंचा है। कलाम में लिखा है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। अगर हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान नहीं लाते तो हम खुदा के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। तो जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हम भी उसे प्यार के साथ कह सकते हैं कि आए बाप, और जिसे हम बाप कहते हैं वो हमारी फिक्र भी करता है, वो हमारा ख्याल भी रखता है, ध्यान भी रखता है, वो हमारी हर तरह से हमारे खाने की हमारी रिहाइश का बंदोबस्त भी करता है। मेरे चीजों, आज के इस कलमे में हम सीखते हैं कि हमें अपनी रूहों की फिक्र करनी है। जिस तरह से यीशु मसीह ने अपनी रूह को बाप के पास पहुंचा दिया,
और एक और बड़ी अहम बात हम सीखते हैं आज के कलमे में। दो बातें जो हम सीखते हैं, एक आखिरी बात जो सीखते हैं वो ये है कि अपनी मंजिल का इंतखाब करें। हर रास्ता खुदा की तरफ नहीं जाता, आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए, तयन होना चाहिए। सिर्फ कौन सा रास्ता खुदा की तरफ लेके जाता है? यीशु मसीह, जिसने कहा कि राह और जिंदगी मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। आज मेरी दुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए हम अपनी रूहों को खुदा के हाथ में सौंप सके। हमें अगली घड़ी का नहीं पता, अगले लम्हे का नहीं पता। मैं चाहूंगी कि सिर्फ चंद सेकंड के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए, और हम अपनी अपनी रूहों को खुदावंद के कंट्रोल में देंगे, खुदावंद के कब्जा, खुदावंद के इख्तियार में देंगे, ताकि अगर आज मेरी और आपकी मौत वाक़या हो जाती है तो हमारी रूहें महफूज हाथों में रह सके, हमारी रूहें उस जिंदा खुदा के हाथों में रह सके जिसने हमें पैदा किया। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, आज के दिन में मैं तेरी अदना सी खात्मा होते हुए तेरे लोगों के साथ अपनी रूहों को तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं, ताकि खुदावंद खुदा जब हमारा आखिरी वक्त आए और हमें ये कहना नसीब ना हो तो तब भी हमारी रूहें तेरे पास हो। खुदावंद खुदा, ईमान की रूह से हम अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपते हैं। जोरदार तालीम खुदा के जलाल के लिए, बेटी के लिए। बहुत अच्छा खुदा के कलाम को उसने बयान किया।